Good evening, respected Mr. Ashutosh Yadav, sir, Chair IEEE SPCP ELS HVTO Kanpur, uh, Team AEE, IEEE Student Branch HVTO Kanpur, IEEE SPC PELS HVTO, our respected seniors, batchmates, and lovely juniors. As you know, we are here in our esteemed series named Placement Talk, where we share experience and learn from our journey of our seniors who are recently placed. So, let me introduce to our first star of the evening, respected Mr. Akshay Srivastava, sir, final BTech Electrical Engineering. First of all, sir, very congratulations for your placement. Can we congratulate him with a huge round of applause, please? Thank you, Avi. Akshay sir recently accepted an offer from Century Pulp and Paper and Telesmart, a dream for many in our college. Akshay sir's journey is nothing short of an inspiration. Now, moving on to our second luminary, Miss Mehak Pandey, ma'am, final BTech Electrical Engineering, HBTU Kanpur. Ma'am, very congratulations as well. Huge round of applause, please. Mehak ma'am will be joining Zuari Industries Advanced Group, bringing pride to our institution. Her story is testament to perseverance and dedication. So, we are here to celebrate and learn from two of our esteemed seniors who have not only excelled academically, but have also secured prestigious placements. Let's dive into their journey, understand hurdles they have overcome, and maybe unravel the secrets they have in their success. So, ma'am and sir, let's rewind to the beginning. Could you share us what motivated you when you were started your college and how your goals evolved over time? Mehak, you go first. Okay, so I have to like tell my journey from the starting, like Yes, since sir. I came to the college. Okay, so okay, I haven't prepared anything, but okay. Uh, uh, I was very academically inclined type of student since like class 11th and 12th. I was hardworking, and obviously, but I didn't prepare for JEE exam back then. But somehow I felt okay. I'll score good marks. I'll go to DU. I'll do economics or something. But because I felt okay, science is very tough, and cracking a JEE exam is very tough. But then what happened, I realized no, I can actually do it. I have been underestimating myself since throughout this whole time. So I took a year drop. I prepared very hard for this exam and I secured a good rank. And because of that only, I am here in this college, this branch. And it was obviously very tough. It was tough as a journey. But after I came here first year. Obviously, we were COVID batch, so it was very tough for us. It was kind of we came to the college like 1-2 months. We were in the college. The first mid-sem we gave for the first semester, and on the basis of that, because no end semesters were held, it was a COVID batch. Classes were being held online. We didn't give any end semester exams. We were promoted to second semester just like that, and we obviously we came to second semester. We we did online classes जैसे तैसे, and उसके बाद फिर एग्जाम्स हुए, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए. तो आसान था काफ़ी, मतलब उस टाइम इतना मेहनत भी नहीं थी, इतना स्ट्रगल भी नहीं था. एंड या फर्स्ट ईयर वाज pretty like very easy. It was like a cakewalk for us. And yeah, from second year came, and it was directly from this whole relaxation. Then we came to second year. uh, Second day was pretty tough because we realized okay, अब सब सच में आंसर्स लिखने हैं, अब जब सच में पढ़ना है तो कैसे होगा. ऊपर से उस टाइम भी इतनी क्लासेस लग नहीं पा रही थी, आई रिमेम्बर. बट हाँ, समहाउ वो भी पार हो गया. और तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे. मेरा जो CGPA वगैरह है फर्स्ट ईयर के बेसिस, फर्स्ट ईयर की बदौलत है आज. और लेकिन हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, आप सबको पढ़ना चाहिए. आप इलेक्ट्रिकल में हो, CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत है. और कोर में यही होता है ना कि मतलब in especially electrical it's very tough. They check they see entire everything. CGPA भी देखते हैं, आपकी कोड की नॉलेज भी देखते हैं, और इतनी आसानी से यहाँ कुछ नहीं मिलता है, और मेहनत सबको करनी चाहिए. तो वही है. देन सेकेंड ईयर पास, थर्ड ईयर केम. थर्ड ईयर वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल, स्पेशली द फिफ्थ सेमेस्टर. एंड yeah, we studied, we somehow like make sure कि कोई बैक ना लगे. And yeah, we somehow managed. We did our stuff, and then final year came, and obviously the struggle began. All the studies and
everything again, but also I made sure कि इन सबके बीच में एक्स्ट्रा करिकुलर्स कंटिन्यू रखूं. मैंने थर्ड ईयर में काइंड ऑफ छोड़ दिया था. फर्स्ट ईयर में आई वाज इन PSMSC, आई वाज इन सेकंड थर्ड ईयर में आई वाज इन कलाइडस कम्युनिटी. आई वाज लिटरेरी इंक्लाइंड टाइप ऑफ स्टूडेंट. ओके, रोटा सेशंस में भी मैं थोड़ा रेगुलर ही जाती थी, क्योंकि मुझे था कि I can't be a nerd type of student. I can't be somebody who's all the time studying and grinding and completely घुसा हुआ है. वो बच्चा नहीं थी मैं कभी. तो फिर हाँ, मतलब I was obviously ये सब करने के चक्कर में भी थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. एंड ठीक है, ये सबकी लाइफ में एक फेज आता है कि जब थोड़ा बहुत किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो, फिर किसी और में ना हो पा रहे हो, बट वही बैलेंस करना पड़ता है. और पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों से बात करो, बाहर जाओ, क्लब्स वगैरह में जो भी चीजें हो रही हैं, कंपेयरिंग कर लिया, कंटेंट राइटिंग कर लिया, वो सब मैंने कर रखा था. तो मुझे हाँ कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि ठीक है मैंने कुछ मिस आउट किया है. एंड या सबको ही ऐसा रखना चाहिए. बाकी हाँ, मैंने बहुत बोल लिया था. आई गेस अक्षत, प्लीज टेक द स्टेज, ऑल योर्स. सो कितने पहले थे ये तो, कितने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कितने हैं? सर सेकंड ईयर मेजरली ज्यादा है मतलब. अच्छा, थर्ड ईयर के तो काउंसिल वाले होंगे मैक्सिमम. यस सर. तो मैं जैसे बताया, लड़कियां तो ऐसे भी सब लोग जानते ही, लड़के पढ़ने वाली ही होती हैं. हम लोग तो लड़के तो लास्ट टाइम वाले होते हैं कि बस एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन नो, पहले. अक्षत हैज अ बेटर CGPA. ओके, सो अक्षत का कोर पे बहुत अच्छा कमांड है, मुझसे कई गुना बेहतर है वो. ठीक है, तो इस मामले में वो गलत है. मतलब मैंने बहुत कोशिश, हाँ मैंने हार्डवर्क काफी किया है, बट हाँ उसके मुकाबले मेरा CGPA नहीं है. सो हियर ही सीजी इज तो कुछ नहीं है. सीजी तो लास्ट डे जिसने बेटर पढ़ लिया बस वो है. मतलब स्टार्टिंग से बताओ तो 12th तो बस मैं लोड मत लेना. मैं तो स्टार्टिंग से ही, मतलब 12th के जस्ट बाद ही ज्वाइन कर लिया था. उसके बाद मेरा यहाँ पे आने के बाद माइंडसेट ऐसा था कि एंजॉय योरसेल्फ, एक्सप्लोर थिंग्स. मतलब मैंने बहुत चीज़ें की. मतलब फर्स्ट ईयर में तो मैंने क्रिकेट भी खेला. क्रिकेट तो अभी तो फाइनल ईयर तक खेल रहा हूँ मैं. काफ़ी काउंसिल में रहा. सेकेंड ईयर में मैंने कई क्लब सब ज्वाइन किए. ऑक्टेव हो गया, 3D प्रिंटिंग क्लब हो गया, ये सब हो गया. मैं एक्सप्लोर करता. एग्जाम टाइम बस ये था कि हाँ एग्जाम से पहले कुछ कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे संजीव सर क्लास कर ली. भाई संजीव सर हो गए, संजीव सर हो गए, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इन सब को. रिलेट सर. बाकी जैसे अभी जो सिचुएशन, जैसे मतलब जो प्लेसमेंट्स है, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, भाई प्लेसमेंट्स तो मतलब ये कह लो तुम्हारी पर्सनैलिटी जो तुमने 4 साल में करके आ रहे हो, जो तुम डे 1 में स्टार्ट किए थे और जो इस डे पे जैसे तुम बैठ रहे हो प्लेसमेंट्स में, तो तुमने जो 4 साल में जो पीछे पर्सनालिटी बिल्ड करके आ रहे हो वही उस दिन रिफ्लेक्ट होगी. जो उस दिन कॉन्फिडेंस गेन करके आ रहे हो वही रिफ्लेक्ट होगी. जो तुमने जो क्लब्स में कहते हैं ना, एक जो कहते हैं कि केवल पढ़ने वाला बंदा है, वो उसके लिए बिट हार्ड हो सकता है ज्वाइन करना, मतलब एक कंपनी क्रैक करना. लेकिन एक बंदा ऐसा है जो मीडियोकर पर पढ़ ले रहा है, मतलब वो कहते हैं ना बेयर मिनिमम पढ़ ले रहा है, और लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई और बाकी स्किल्स बढ़िया हैं, उसका CV बढ़िया है, तो उसके लिए बिट ईजियर रहेगा कि उस दिन, जिस दिन लास्ट डे होगा, उस दिन बैठना, उस दिन कंपनी में इंटरव्यू देना, उनके GDs क्रैक करना, वो सीन रहता है. बाकी तुम लोग डाउट्स बताओ, मतलब क्या पूछना उस अकॉर्डिंग फिर बताया जाए. हाँ सर, तो फिर ये मतलब आपकी वाली वैल्यू अच्छी थी कि जो मतलब मीडियोकर है इन स्टडीज बट वो ऐसे कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो लाइक उसके लिए ज़्यादा वो है बेटर इन लाइफ. बट सर आगे बढ़ते हैं कि मतलब मैम आपने और सर आपने मतलब जो कॉलेज के टाइम पे क्या हर्डल्स थे, व्हाट वर द हर्डल्स दैट यू एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग योर कॉलेज सेशन एंड हाउ यू ओवरकेम देम एज वेल. यस सर. इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो भाई मेजर जो हर्डल होते हैं वो इनके सब्जेक्ट्स ही होते हैं. यस, एग्री. इन सब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खासकर जो जिस भयंकर कोर के साथ हम लोग आ रहे हैं, इतना मतलब भयंकर कोर हमारे किसी भी साथ कोई कॉलेज में नहीं होता. इवन इन IITs तुम जाओगे तो रिलेटेड टू ऑटोमेशन, रिलेटेड टू IT, द फील्ड उसी जाती है वो, तो उससे वो बिट ईजी हो कि हमारा बिल्कुल भयंकर कोर है. तो उस चीज़ को भाई बहुत कमांड पाना मतलब अच्छी चीज़ है. वो अगर तुमने पा ली, वो 4-5 सब्जेक्ट्स गिन के हाथों पे, उनको तुमने कर लिया बढ़िया से, तुम्हारा सीन सेट हो जाएगा. बाकी जो तुम्हारे टीचर्स के साथ जो तुमने
जो क्लास का मैनेजमेंट कहते हैं, जो एक रिलेशनशिप कहते हैं कि भाई तुमने कितने अच्छे दोस्त बनाए, तुमने कितने अच्छे अपने टीचर के साथ कितना विश्वास पाया उनका। फाइनली ऐसा ना हो कि तुम फाइनल ईयर में बैठे हो, तुमको कोई टीचर नहीं जान रहा, तुम्हारे साथ के स्टूडेंट्स नहीं जान रहा, तुम्हारा सीनियर नहीं जान रहा। तो वो चीज़ है, मेन चीज़ वो है। मतलब तुमको मैं लास्ट नाइट का तुमको एक शेयर करता हूँ इवेंट। इवेंट क्या है, मेरी ऐसे ही तुम लोग अगर कुछ शायद जानते हो क्रिकेट वाले अगर बंदे हो तो 2021 पास आउट सर हैं अमन गौरव लखोटिया सर। तो वो हमारे क्रिकेट के कैप्टन भी थे और आईटी पास आउट है। तो उनसे मेरी ऐसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे जनरली पूछ लिया कि तुमने आज खाना खाया कि नहीं। कल यार इतना वाहियात खाना बना था हॉस्टल में, मैंने खाया भी नहीं था। मैंने कहा नहीं सर नहीं हुआ। भाई रात के 12 बजे उन्होंने मेरे लिए बर्गर ऑर्डर किए, वो बैठे हुए वहां पे मुंबई में। How sweet. How sweet. भाई यही चीज कमा के जा रहे हैं तुम। 2 साल बाद हम तुमसे मिल रहे होंगे तो प्लेसमेंट्स और ये सब तो कंपनी चेंज होती रहेगी। तुम अभी नहीं तो 6 महीने बाद क्रैक ही कर लो, कहीं ना कहीं सेटल हो गए। भाई तुम एचबीटीयू में आए हो, एक सेम रैंक सेम रेंज के बंदे सब आए हो, कहीं ना कहीं बहुत सेटल बहुत बढ़िया करोगे। बस वो टाइम को यूटिलाइज करना और रगड़ना वो इम्पोर्टेंट है। मैम yes. भाई कोर के सब्जेक्ट्स तो पहले तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट बेसिक्स तुम्हें क्लियर हो। बेसिक्स इन द सेंस कि तुम्हें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस कहते हैं ना, तुमको भी रिसर्च करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तुम बुक में जो लगाते हो, जो बुक में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। अरे देखो बेसिक्स तुम्हारे क्या हो सकते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर को अच्छे से रटना है, वो मत करना। बेसिक्स क्या हो सकते हैं, पावर फैक्टर क्या कैसे होता है, वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ लो अच्छे से, एसी डीसी समझ लो। ये जो छोटी छोटी बेसिक्स होते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर हम इन पे ध्यान नहीं दे पाते और ऑब्वियसली क्लास में इतना डिस्कस भी नहीं होता है, तो कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिन पे नहीं ध्यान जाता है, तो गूगल कर करके आपको मतलब कई ऐसे चीजें मिल जाएंगी जो कई बार किताबों में नहीं होती। बट किताबों को भी जितना अच्छे से पढ़ लो, मतलब अभी 3rd ईयर है, अभी काफी टाइम है। मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इन दोनों पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कमांड होना चाहिए। एंड या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्वियसली मतलब वो बहुत ही कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिक्स एटलीस्ट अगर पूरे भी ना कर पाओ तो उसके बेसिक्स अच्छे से कर दो कि थायरिस्टर कैसे ऑन ऑफ लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो भी तुम्हारे लिए काफी है। एंड मैम एक क्वेश्चन और था कि आपने जैसे बताया आप को करिकुलर में भी लाइक एक्टिव थे और उसमें भी थे, तो मैम ये मतलब बैलेंस कैसे करें इनको? और लाइक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे पढ़ के आप अच्छे नहीं, लास्ट टाइम ऑनेस्टली नहीं है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा मेरा शायद थोड़ा सा सीजी कम ही रह गया उस वजह से। बट ठीक है, ऑनेस्टली मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, मैं स्कूल वगैरह में भी डिबेटिंग और इन चीजों में थी, और यहाँ पे भी मैंने काफी कुछ किया। वो जो सेंटिनेली की बुक थी उसमें आई वाज वन ऑफ द ऑथर्स, हालांकि कभी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ नहीं मिलते। और क्या था, हाँ, नोशन नेगोशिएशन करके एक डिबेट छोटी सी हुई थी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, उसमें भी मैं थी। तो काफी चीजों में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि आई वाज लाइक कि मजा आती है करने में। ठीक है, कोई इस तरह से मत करो कि करने के लिए कर रहे हो या तुम्हें दिखाना है किसी को इसलिए कर रहे हो। अगर तुम्हारा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है देन गो फॉर इट, क्योंकि इस कॉलेज में इतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज्यादा कुछ होता नहीं। और अब फाइनली देखो हम लोगों ने थोड़ा किया, तो तुम लोगों में कि बैच में ये सब और थोड़ा होने लग रहा है और इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, जस्ट टेक इट यार, मतलब करो यार। अभी 3rd ईयर में थोड़ा कम कर दो, 3rd ईयर में थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, सीजी बना लो, जो कि मतलब बन जाती है, ठीक ठाक बन जाती है। बट हाँ, कॉम्प्रोमाइज मत करो, ट्राई टू बैलेंस आउट। और जब जरूरत हो तो पढ़ाई कर लो। एग्जाम से पहले 1-2-3 हफ्ते पहले तो यार मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने बहुत जरूरी है। लोड मत लो, बट अपनी चीजें क्लियर रखो, बैलेंस कर लो, हो जाता है सब। तो मैम आगे बढ़ते हैं। तो मैम प्लेसमेंट टाइम इज वेरी क्रूशियल, एंड सो कैन यू वॉक अस थ्रू योर प्लेसमेंट एक्सपीरियंस एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड द स्ट्रेटजीज यू फाउंड मोस्ट इफेक्टिव? स्टार्ट फ्रॉम यू मैम। ओके यार, मैं क्या बताऊँ, इट वाज, मैंने हर चीज देख लिया, इतने महीनों से लगे हुए थे। एंड अक्सर मतलब
मुझे लगता था कैसे होगा, क्या होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत पढ़ा यार, ऑब्वियसली मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, सबके बेसिक्स देखे, नॉट जस्ट बेसिक्स बट यू नीड टू ऑल्सो सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। गूगल किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो देखे, बुक्स में काफी कुछ देखा। एंड धीरे धीरे करते करते फिर आया एक्सपीरियंस का टाइम, क्योंकि आप खुद से पढ़ते रहते हो तो इतना नहीं सीख पाते, बट एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर इन योर लाइफ आई गेस। और फिर एक दो मतलब इंटरव्यूज भी दिए, कुछ मतलब आई गेस ये मेरा चौथा इंटरव्यू था जिसमें फाइनली हो गया। 2-3 दिए, तो पहले वाले में आई कुछ ना कुछ हो रहा था कि 1-2 सवाल रह जा रहे थे, या 1-2 छोटे छोटे माइन्यूट टॉपिक्स जो पढ़ते पढ़ते नहीं आते थे वो रह जाते थे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली तो हो ही जाता था। और इतना भी होता है कि जिस दिन आपका लाइक इंटरव्यू होता है, लक इज अ वेरी बिग फैक्टर। अगर आपका होना होता है तो आपका हो ही जाता है, और अगर कई बार कुछ ना कुछ चीजें अटक जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं, किस्मत कई बार ऑब्वियसली प्लेज अ बिग रोल। एंड इस साल इट वाज डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो यही था बस। और कभी कभी यार हिम्मत भी हार जाता है इंसान। लाइक अभी बहुत से लोग हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आई होप सबका कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाए, बिकॉज सिचुएशन इज वेरी टफ। बट यही है यार, लगे रहो। गॉड डेफिनेटली लिसन्स टू द वन हु इज हार्ड, मतलब जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो उस चीज के लिए ट्राई कर रहा है लगातार, तो लगे रहो और अपनी मतलब कंसेप्ट रिवाइज करते रहो, अपनी चीजों को क्लियर करते रहो। और जितने लोगों का इंटरव्यू होता जाए उनसे पूछते रहो कि क्या पूछा था, कैसे पूछा था, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो। ऐसा नहीं है कि खुद गलती करोगे तभी सीखोगे, लाइफ इज टू शॉर्ट। तो यार सीखते रहो, पढ़ते रहो, और यही है लगे रहो जब तक ना हो, क्योंकि आप खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखोगे, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखोगे। एंड या दैट्स इट। सर यार मेरा तो बहुत ही मैं तो कितने दिए होंगे इंटरव्यूज। मैं थर्ड ईयर में दिए थे 2, थर्ड ईयर में एक रिलायंस का दिया था, वो दिए थे, और इधर दिए 5। मैं 7-8 इंटरव्यू उसके बाद कर रहा हूँ। मेरा तो काफी रहा। तुम एलिजिबल भी थी ना काफी चीजों के लिए। मैंने यार मेरा स्टार्टिंग से थिंकिंग ये था, मतलब पहले 2 इंटरव्यूज में लगा कि पहले 2 इंटरव्यूज में भाई वो होता है ना इनएक्सपीरियंस वाला, कि बुक पढ़ लो, एकदम वर्ल्ड कर लो, बुक से कुछ पूछ लेंगे, इस तरह चीज़ें कर लेंगे। भाई मतलब इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज, तुमसे व्हाट इज इंडक्शन मोटर नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे इंडक्शन मोटर अप्लाई कहाँ होती है। तुमसे डीसी मोटर नहीं पूछेंगे कि डिफाइन करो व्हाट इज डीसी मोटर, वो डीसी मोटर के तुम्हारे कोई प्रिंसिपल पे या कोई इस पे वर्किंग पे पूछेंगे। ये मेरे प्रिंसिपल पूछा था एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। हाँ, एप्लीकेशन पे पूछेंगे कि कहाँ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कहाँ यूज हो रहा है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अब ये इतना यूज नहीं होता है तो उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हो, और हाँ, मतलब कहाँ एक्चुअली अब इसका कम हो रहा है यूज ज्यादा, और थोड़ा सा तुम्हें करंट की नॉलेज भी चेक करते हैं वो तुम्हारी करंट की नॉलेज। और मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग इन द सेंस तुमने वो बुक में चीज़ कभी पढ़ी नहीं होगी, कि लाइक तुम मोटर घुमा रहे हो, तुम्हें एक मोटर का मैं से इंटरव्यू में पूछे थे कि इंडक्शन मोटर है, उसका एक फेज को मैं मान लो पंखा घूम रहा है, एक मैं तोड़ दूं पर तो क्या होगा, या इंडक्शन मोटर एक फेज को मैं तोड़ दूं चलते चलते क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा क्या प्रैक्टिकल सोच है, इस बेसिस पे तो वो तब तुम सोच पाओगे जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भाई अपने बेसिक्स क्लियर करने में सोचा था कि अपने मशीन्स हो गए, पावर सिस्टम्स हो गए, बहुत छोटे छोटे, जैसे 11 kV पे क्यों ही हम ट्रांसमिट करते, स्टेप अप क्यों करते, स्टेप डाउन क्यों करते, ट्रांसमिशन मतलब केबल क्यों नहीं, हम लोग पावर सिस्टम पढ़ रखे होंगे, 1 तो पढ़ ही लिया हुआ, थर्ड ईयर वाले, सेकंड पे चल रहा है, तो वो सीन रहता है। बाकी मेन चीज तुम्हारा रहता है कि तुम कितना गूगल करते हो। भाई गूगल प्लेसमेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और कोई एग्जाम्स के लिए नहीं, गूगल भाई प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। बेस्ट यार। तुम कुछ भी दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, कुछ भी मतलब जितने टाइप के सवाल एक टॉपिक से बन सकते हैं सब देख लो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 चीजों पे बहुत रट लिया हो गया या किताब से पढ़ लिया हो गया। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑब्वियसली, मतलब जितना एक चीज को अच्छे से पढ़ते जाओ एंड इवेंचुअली तुमको वो चीज रट जाएगी। कोई भी कभी भी सोते हुए उठ के भी पूछ लेगा, तुम बता दोगे, ऐसा हो जाएगा। अपना ग्रुप बहुत अच्छा बनाओ, 2-3 बंदों का ग्रुप बनाओ और उनके बीच में भाई ये सब चीजें डिस्कस किया करो। मेरा ग्रुप था, मेरे ग्रुप में ठाकुर सब लोग जानते ही होंगे, नरेश ठाकुर सर हमारे,
हाँ, हम बस दो बंदे रहते थे, हम लोग बीच में वैसे क्वेश्चंस चलते रहते थे कि अच्छा ये बता तू ये क्या होता है, अच्छा तू बता ये क्या ये होता है। चीज मैंने भी करी थी। मेरा एक दोस्त है आदर्श सिंह है, वो भी इसी के साथ प्लेस हुआ है। हम दोनों ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही कि एक एक सवाल एक एक टॉपिक पकड़ के बस, और मुझे लगता है उस चीज से मुझे शायद हम दोनों को काफी फायदा हुआ है, हम दोनों के बहुत हेल्प आसपास के मिलती है, पैकेजेस है। बहुत हेल्प काफी सही मिलती है है। इस सब चीज़ों में हाँ। कि कैसे मतलब उसमें तुमको सोचना है ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। और साथ में तुम्हारी जो जो बाकी तो तुम्हारी ये तो 50% है जो तुम्हारा जो स्टडी करके जा रहे होगे, मतलब कम्युनिकेशन हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई, कि कम्युनिकेशन तुमको एक चीज़ आंसर आता है और तुम इंटरव्यू के सामने वो आंसर बोल नहीं पाए ना, तो तुम्हारी पिछले 3 साल की पढ़ाई बेकार है। तो उस हम्म। तरह के माइंडसेट से जाओ। और कोई बंदा अगर तुमने भाई मैं पहले कहा था कि कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और इस तरफ की चीज़ें होगी ना, तो भाई तुम्हें कुछ भी आइडिया लगेगा ना, तो वो तुम कुछ ना कुछ बता ही दोगे। बस ये सही डायरेक्शन बताना तुमको। ऐसे जो इंटरव्यूज आते हैं भाई काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ये समझ जाते हैं कब जो है तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, कब तुम सही बता रहे हो, तो तुमको नहीं आता। तो जिस पे ब्लैंक हो वो तो चलो तुमको नहीं छोड़ने ही क्वेश्चन, लेकिन जिस पे ब्लैंक नहीं हो उस पर जो एफर्ट डाल के कॉन्फिडेंस साथ बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ मैटर करती है उनके लिए, क्योंकि लास्ट में उनको जाके जो है देनी ट्रेनिंग अपनी ही। यहाँ की जो नॉलेज है वो वहाँ पे 60-70% यूज हो रही होगी, बाकी 30% वो अपना सिखा रहे होंगे। बाकी यही जो 60-70-30% के लिए ही वो लेके जा रहे हैं, बाकी उतना कॉन्फिडेंस चेक करते हैं बस। गुड इवनिंग मैम एंड सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने देखा था कि आप कैलाइडिस कम्युनिटी पे एज ए कंटेंट हेड शायद मैं आवाज। हाँ। हाँ। हेलो हाँ। जी मैम, एम आई ऑडिबल? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। यस थोड़ी मैम। लैग कर रही है ना शायद, आई गेस प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा अब ठीक है, बोलो बोलो। गुड इवनिंग मैम एंड सर। गुड इवनिंग। मैम एक क्वेश्चन था कि मतलब आप मैंने देखा था आप कैलाइडिस कम्युनिटी पर एज ए कंटेंट हेड शायद, मेरा श्योर नहीं हाँ मैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, सही तो हो। मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या होता है एकेडमिक्स में अगर कोई अच्छा कर पाता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं कर पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी ये नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो किसी स्टीरियोटाइप में कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा। भूल जाओ, यहाँ से प्लेसमेंट तो तुम ले लोगे, फिर क्या याद क्या रहेगा, कुछ किया क्या तुमने लाइफ में? नहीं, इतना ही रह गए, बस पढ़ते ही रह गए और कुछ तो नहीं कर पाए। तो ऐसे कभी अपने आप को ऐसे ये नहीं समझना चाहिए कि एक चीज करो तो दूसरा नहीं कर सकता। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें भगवान ने बनाया है, स्काई इज द लिमिट यार। अभी क्या मतलब, हम लोग ये प्लेसमेंट लिए तो हम लोगों ने, अक्षत सर ने भी किया, मैंने भी किया, हम सब एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हैं, आस्था मैम है वो भी कर रही है, और ऐसे यार एक मयंक सर भी है, ही इज ऑल्सो वेरी गुड यार। मैं और मयंक वर द ओनली पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू कंटेस्ट फॉर लिट सेक्रेटरी, हम थे उसमें। मयंक सर गॉट इन टू वॉट, आई थिंक ही इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। आई होप, मुझे नहीं मिला कुछ, वो जो भी है, बट लाइक मेरा काम बहुत अच्छा था और मैंने सच में किया था। अब वो जो भी होता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से भी कई बार आप नहीं उस चीज तक जा पाते हो, बट जी हाँ मैम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं शायद उस चीज को संभाल ना पाती लॉन्ग रन में। जो मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में किया वो मेरे लिए था बहुत। लेकिन ऐसे यार इतना सोचना नहीं चाहिए, इतना तुम अपने आप को कम कम समझोगे तो क्या हो, मतलब अपने आप को कभी मतलब डेरोगेटरी में मत जाओ, अपने आप को ऐसा ये मत समझो कि ये कर रहा हूँ तो वो नहीं कर सकता। तुम सब कर सकते हो, ठीक है, तुम कर सब कर सकते हो सकते हो। भाई। तुम्हारा जो कंपटीशन होता है ना, वो तुम्हारा जेई मेंस तक होता है। तुमको बस। जितने बीटेक घुसे हो ना, तुमको केवल अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने से कंपटीशन है। तुम बस ये सोचो कि रोज मैं क्या सीख रहा हूँ नया, ये सब मैं रोज दुनिया क्या की improve कर बातें हैं रहा हूँ। कि एक चीज करोगे दूसरी नहीं कर पाओगे, आप कम हो जाएगा। अरे थोड़ा कम करोगे, बट उनके मुकाबले तुम्हारे कैप में ज्यादा फेदर्स हैं, कीप एडिंग फेदर्स टू योर कैप, डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ की एक है तो हाँ, दूसरा नहीं है यार, और ऐसा नहीं है। भाई अच्छा करोगे तो सब चाहेंगे कि क्या कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। जिनसे जिनसे बेटर जाओगे वो मेरे बहुत लोग बोलते हैं कि ऑब्वियसली तुमने मेरा तो देखो, मैं इतनी कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं हूँ पढ़ाई लिखाई, मेरा बहुत अच्छा सीजीपी नहीं है, ठीक है, बट मेरा इतना अच्छा इतना मेंटेन करो कि तुम एलिजिबल रहो हर चीज के लिए, ठीक है, बट अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि यार अगर मान लो इंटरव्यू ने कुछ पूछा कि ठीक है ये सब पढ़ाई लिखाई ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैव यू डन इन 4 years, तो बस होना चाहिए ना कुछ बोलने को।
ताकि जी इससे वजह से वो तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स देखेंगे, तुम्हारी कि तुम पीपल्स पर्सन हो कि नहीं हो, तभी वो तुम्हें और रोल्स दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? जी ऑल द बेस्ट एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ, मैं तो कह रही हूँ। मैम, जैसे आजकल क्या है, ट्रेंड चल रहा है कि आजकल मतलब लोग क्या है, एक नहीं दो दो तीन तीन चीजें मतलब करते हैं। हाँ देखो अभी जैसे सर अभिषेक सर, आईएएस अभिषेक सर थे, वो स्टार्टअप में भी थे और उसमें भी थे। तो मतलब आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हाँ हाँ, either you be jack of all trades और यू बी द मास्टर ऑफ नन। या तो एक चीज को मास्टर कर लो इतने अच्छे से कि दूसरे में तुम कह सकते हो कि भाई ये कर रहा तो दूसरा नहीं कर पाया। लेकिन वही होता है ना, अगर तुम सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करोगे, अच्छे से कर ले जाओगे, तो हो जाता है। और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है? बस बात नहीं है। और मेन चीज मैच्योर होना सीखो, मतलब मैच्योर इन द सेंस कि तुम्हें अपने बारे में पता हो कि तुम किससे क्या चीज अरे ग्रैस्प कोई कर रहे हो। तुम्हें क्यों बताएगा कि तुम क्या हो? तुम खुद को बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम नोबडी, अगर डोंट 10 चीज करके भी तुम एनीवन। अच्छा कर ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तुम्हें वो खुद रियलाइज होगा कि मैं भाई इस चीज से ये चीज कर रहा हूँ, मेरे इसमें टाइम नुकसान नहीं है या मेरे कोई नुकसान नहीं है, तो वो चीज करो। कोई प्रेशर में किसी के कहने से या कोई इनफैक्ट हाँ फेम वेम के लिए कभी काम मत करना। केवल हाँ काम को अपने इम्प्रूव करने के लिए करो कि भाई मेरी इससे स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है या मेरे से ये चीज इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि एट द एंड वही सब चीजें तुम्हारे आएंगी। जो इंटरव्यू में भाई सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। कॉन्शियस माइंड से 10% आंसर दोगे, बाकी जो तुम्हारे होगा ना सबकॉन्शियस माइंड से आंसर्स होंगे, तो तुम पिछले 4 साल में करके आ रहे हो। इनफैक्ट ये जो कलाइडस कम्युनिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के दो सर हैं, एक हर्षित पांडे सर है और एक आर्यन शुक्ला है। इन दोनों की भी आज प्लेसमेंट्स है। आर्यन शुक्ला इनफैक्ट वो कैट के लिए भी कर रहे हैं, उनकी अच्छे परसेंटाइल है। एंड हर्षित करंटली वो गुड़गांव में इंटर्न कर रहे हैं अपनी फैंटा क्लॉस में। तो सोचो, मतलब ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने ये कम्युनिटी फॉर्म की है, मैं तो उसका पार्ट थी, बट उन दोनों ने फॉर्म किया, उन्होंने आगे बढ़ाया, मैगजीन वगैरह पे काम किया, काफी कुछ किया उन दोनों ने, ठीक है? वो कितने मेहनती लड़के हैं। काम थोड़ा बढ़ेगा, बट लाइक एट द एंड तुम सेटिस्फैक्शन के साथ सोओगे कि ठीक कुछ तो किया है, मतलब है, पढ़ाई भी की है, अपने मन का भी काम किया है, ठीक है? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई है? थैंक यू सर मैम। यस मैम, बट मतलब काफ़ी वैल्यू शेयर हो गई है सर आपके और मैम के वजह से आज। बट अभी हम मतलब जो मेन आपकी जो जर्नी रही है उससे 3 वैल्यूज बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो मेन 3 वैल्यूज आप शेयर करना चाहें। अक्षत, यू गो फर्स्ट, मुझे सोचने दो जरा। जो मेन 3 वैल्यूज है भाई, मतलब कभी तुमने ये सोचा भाई कि इंजीनियर्स हर जगह फोड़ते क्यों हैं? कि बीट एनी अदर फील्ड, यूपीएससी और एमबीए और कहीं भी, भाई मेन चीज जो इस कॉलेज या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या इंजीनियरिंग का ऐसा कोर्स डिजाइन है ना भाई, लड़के को रगड़ना सिखा देता है, हसल करना सिखा देता है। और जिस बंदे ने ये हसल करके 4 साल आया ना, मतलब हसल केवल पढ़ाई में नहीं होता। तुम लड़के यहाँ पे आना, मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया कि तुम 2 घंटा क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर 1 घंटा डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसके बाद जाके घर पे 2 घंटा स्टडी भी कर रहे हो, उसके बाद अपना खाना भी खा रहे हो, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो हसल, वो चीजें करना हो, वो सब कुछ एक फोकस के साथ करना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। वो एक तो पहले चीज तो हसल करना सीखना चाहिए बंदे को। दूसरी चीज कि एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा चांस है। मतलब मैं तो कहूँगा अपने इंडिया में लौटा ऐसा कॉलेज है और बेस्ट इस टर्म्स ऑफ गिविंग मतलब फ्री टाइम, कि भाई मैंने ऐसा कोई कॉलेज नहीं देखा जहाँ पे इतना मेरे को खाली समय मिल रहा हो अपने चीज़ों को करने के लिए। IITs के भी बच्चे देख लो, कहीं देख लो, सबका 75, हम लोग क्या भी है, लेकिन तुम लोग खुद जानते हो कितना हार्ड एंड फास्ट है वो। एट द लास्ट सब बैठते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्लास करने से भी डिसिप्लिन भाई। क्लास से जो तुम खुद ही अपने क्लास में कभी एनालाइज करके देखना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई मैं तो आता नहीं, मैं तो घर पे पढ़ लूंगा, ये सर की क्लास वास क्या ही करके करूंगा। और कुछ बच्चे होंगे जो रोज क्लास आते होंगे, जो रोज क्लास आते होंगे उनके ज्यादा अच्छे नंबर आते होंगे, कहीं भी लिख के ले लो। तो वो उससे ये नहीं कि पढ़ तो दोनों ले रहे हैं, मेन जो डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है ना, कि मेरे जो टाइम शेड्यूल है वो हो, मतलब बाय फकेट हो रहा है कि इसमें ये करना है उसमें वो करना है, तो वो चीजें हो रही ना। मेन चीज दूसरी चीज वो है। और तीसरा भाई क्या एंजॉय करो भाई। हमारा 4 साल है, ये 4 साल कभी मतलब जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाले। सब कुछ वापस कर लो। पढ़ाई भी में एक बार एक होता है कि भाई हाँ ठीक है अभी नहीं हो पाई, 2 साल लगा कर लोगे, लेकिन ये 4 साल भाई, ये जो दोस्त बना के जा रहे हो, ये जो कॉलेज की मेमोरीज लेके जा रहे हो, कभी नहीं आनी।
ठीक है, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, इतना तो बोल दिया। और तुमने जो बोला काफी सही बोला यार। अब देखो इलेक्ट्रिकल में हो, ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्रांचेस में तुम देखोगे आसानी से बच्चे, इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चे बहुत वेले होते हैं कसम से, कुछ नहीं करते, और उनकी ब्रांचेस इतनी अच्छी होती है कि मतलब भर भर के जॉब्स लग रही है, सब हो रहा है। तो कभी इस चीज के लिए खुद को ये मत सोचना कि ठीक है हमारा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी हम भी सोचते हैं, बट एट दी एंड हमारे में कुछ अलग है यार। हम इलेक्ट्रिकल से है यार, टफेस्ट ब्रांच है, ऐसी ही थोड़ी है। जी भाई, तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम उस चीज का कोई भी मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है एज सच। बाकी जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर मान लो कि कुछ बच्चों का शायद यहाँ कोडिंग में भी इंटरेस्ट होगा, और हो सकता है उसमें फिर किसका किसी का है, तुम्हारा है ना, सही है। तुम्हारा ही है ना। तो मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा कि शायद ये कोर वगैरह को मैनेज करना बहुत टफ होता है। इस बार पता है द सिचुएशन वाज दिस कि कोर आईटी की शायद कुछ ही कंपनियां खुली थी इलेक्ट्रिकल में, ज्यादा खुली भी नहीं थी। हम लोग तो मेजर कंपनीज आती थी, जैसे प्योर सॉफ्टवेयर हो गई, और लैंडिस गेयर आई भी नहीं थी, ऑप्टम आई नहीं, है ना, लैंडिस गेयर नहीं आई, लैंडिस गेयर नहीं आई। इट वाज, बट वो इलेक्ट्रिकल में कहाँ खुलती थी? खुलती थी इलेक्ट्रिकल के। लास्ट ईयर बच्चे रिक्रूट हो रहे थे, बस उससे लास्ट ईयर बच्चे रिक्रूट हो रहे थे उस पर। हाँ, उसी में गए थे, युवराज सर उसी में गए थे। युवराज सर 2022 पास आउट। हाँ, अनुष्का मैम और ये एक और मैम थी, ऐसे नाम था, साक्षी, या इलेक्ट्रॉनिक्स में थी वो। काफी मतलब लोग हुए थे। अब वही है, उनकी ब्रांचेस में एक स्पेसिफाइड है कि या तो मतलब कोर, या नीचे वाली ब्रांचेस में या तो कोर है, कोडिंग का कोई उतना नहीं, क्योंकि उनके में जॉब्स बहुत है, उनको कोडिंग की जरूरत नहीं है एज सच। और बाकी आईटी सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक है, उनके पास केवल ही कोडिंग है, उनको और कुछ चीजों का इतना नहीं होता है, कोर वगैरह का। हमें क्या है कि हम दो चीजों में बटे हुए हैं, और इस बार मतलब सिचुएशन थी सच में मुश्किल। तो जब सिचुएशन ऐसी हो, कोर में सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी शुरू करके पढ़ सकते हो, कोर इतनी आपको अपना लेगी, वो ये नहीं सोचेगी ये तुम्हारी कंपलसरी है भाई। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रिकल आनी ही चाहिए। कई बार यार क्या पता तुम बेसिक क्लियर होना पड़ेगा। हाँ, इंटरव्यू दे रहे हो, वहां तुम्हारा कुछ कोडिंग मतलब कोर का पूछिया, तो करना पड़ेगा। बाकी कोडिंग में जो बच्चे हैं, बीएसए वगैरह अच्छे से करो, ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ मतलब जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें वही जाना है, तो तुम्हें वही करना चाहिए। और क्या वैल्यू दो तो बता दी यार, अपने इंटरेस्ट का काम करो, पढ़ाई करो, तीसरी क्या बताऊं, पर्सनालिटी बना लो यार, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अच्छे से बात करना सीख लो यार, कम्युनिकेशन वगैरह तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स मुझे लगता है मेरी जितनी थी, मेरे स्कूल से भी काफी आई, और मैंने यहाँ पे काफी कुछ किया। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, नेटवर्किंग बना लो, इतने मतलब लोगों से बात करो। कोई तुम्हारा दोस्त है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कहीं से कुछ बता दिया, तो तुम्हें पता चलती रहेंगी चीजें कि चल कर रहा है, तुम कुएं का मेढक बन के नहीं रहोगे। ठीक है, और टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, सब जो लोग संजीव सर से जुड़े होंगे उन्हें तो पता ही होगा। संजीव सर ने पहला उनका क्या रूल रहता है कि भाई जितने नंबर सेव हो सकते हैं सेव करो। हाँ, नहीं पता किसका किस मुझे टाइम। भी आज मैं गई थी तो मुझे भी यही कह रहे थे कि बस जितना हो सके डेटा कलेक्ट करती रहो। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार आज की डेट में। लिंक्डइन वगैरह पे भी अगर कोई बच्चे हैं ना, लिंक्डइन पे तुम लोग नहीं हो ना, तो बस उसको अच्छे से यूज क्या है कि देखो उसमें जॉब वगैरह आपको लग नहीं पाएंगी, क्योंकि उसमें जॉब बहुत मतलब बहुत ज्यादा हाई जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल का सीन मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब इलेक्ट्रिकल का इस साल का सीन से लास्ट 2 इयर्स का देख के बता रहा हूँ मैं, जितने एक्सपेक्टेशन से तुम लोग इंटर किए होगे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इस साल भी इवन 7-8 कंपनीज ऐसी थी कि जिनका बीच में कुछ मिसकंसेप्शन में चली गई, मतलब कि उनका फिर होगी थी वैकेंसी है उस तरह। अगर वो भी ना होता तो ऑलमोस्ट अभी 50 भी टच कर रहे होते हैं। अरे मैंने इतना अच्छा एक इंटरव्यू दिया था, वो कंपनी भाग गई। 1-2 कंपनियों में टेस्ट दिए, वो भाग गई, फॉर्म भरे, वो भाग गई। और इस साल बहुत मतलब चीजें हुई हैं, मतलब हम आरती नहीं, हम लोग में लास्ट में आरती कितनी सही थी पता है। आरती ने आई गेस मैकेनिकल, केमिकल, सिविल तक में वो बच्चे रिक्रूट करके टोटल 38 ले गई थी ना, आई गेस कॉलेज से 38 ले गई थी। हाँ 38, सोचो 3 ब्रांच मिला के से 38, तो ऑलमोस्ट एवरेज लगा लो, सबसे 11 जानते हैं। इतने बच्चों का भला हो गया उसमें, बट हम सोच रहे थे रिक्रूट नहीं हुआ आरती में, हम लोग को कोई भी मास रिक्रूटर नहीं है। उसके बावजूद हम लोग जो है क्लास मतलब कॉलेज में 2nd या 3rd रैंक पे चल रहे हैं। मतलब मैकेनिकल और केमिकल के बाद सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हमारी ही है। ऑब्वियसली मैकेनिकल और केमिकल उस चीज को भाई कॉन्फिडेंस मिलो। देखो वही है ना कि उनके टीएनपी बनते हैं, अगर तुम लोगों में से कोई टीएनपी बनता है
तुम लोग कोशिश कर सकते हो, तुम लोग में से कोई बन जाए तो इलेक्ट्रिकल की और कंपनी आएगी, क्योंकि मोस्टली कंपनियां मैकेनिकल या केमिकल को केटर करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सेकंड उसमें प्रायोरिटी में रखती हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, इस चीज को चेंज करो यार, मतलब तुम लोग इतने स्मार्ट हो यार। एक्चुअली हम लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना, अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि मैकेनिकल से ही टीएनपी बनेगा, ठीक है, आप अपने हाथ में बी द चेंज यू वांट टू सी इन यार। एक दो बार अभी बात हुई है, थोड़ा बहुत, अभी आगे तक पता नहीं है, अभी आगे प्रोसीड हो नहीं पाया। हाँ ठीक है, शायद 2-3 दिन में पता देखो है इस कॉलेज में, बाकी कोशिश करते रहो। हाँ युगल क्या बोल रहे हो? कई बार मोस्टली मुझे लगता है जो चीज हम नहीं आंसर कर पाते हैं वो बहुत अजीब सी फालतू सा कोई क्वेश्चन होता है जो वो तुम्हें अटकाने की कोशिश करेंगे, वरना मोस्टली हम इतना पढ़ चुके हैं, हमको सब 90% आता है। इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो उनका माइंडसेट सोच के जाओ, वो तुम्हें भाई तुम्हारी नॉलेज नहीं चेक करने आ रहा है, वो टेस्ट सब कुछ देख चुके हैं, तुम्हारा मैं नॉलेज सब कुछ देख चुके हैं, वो सिचुएशन तुम्हें फंसाएंगे, जानबूझ के फंसाएंगे, जानबूझ के। तुम अगर तुम सब कुछ सही से एकदम जो टेक्स्ट बुक कहते हैं ना, बुक आंसर, तो उनको लगेगा वो अंदर अंदर घुसते चले जाएंगे, वो तुमसे कुछ भी फालतू पूछने लगेंगे, तो उस सिचुएशन में वो हर इंटरव्यू में फंसाते हैं। लेकिन उस चीज को तुम कैसे टैकल करते हैं ना, मतलब जैसे मेरे को तुमको कोई चीज नहीं क्लियर है तो भाई ठीक है, नो सर आई डोंट नो दिस, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, या फिर आई हैड स्टडीड दिस बट एज फार आई कांट रिकलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। देखो वही होते हैं ना, बहुत छुटकू सा फालतू सा कोई सवाल, बेसिक्स पे नहीं करना। जैसे तुम लोग के अभी इंटर्नशिप का टाइम आ रहा है, तो इंटर्नशिप भाई मतलब लोग नहीं करते, मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे ब्रांच वाले भी नहीं करे थे, सब 1-2 दिन गए थे जो बस सर्टिफिकेट लेके चले आए थे। मैंने लेकिन की थी, मैंने डीआरडीओ में की थी भाई, बहुत असर पड़ता है तुम्हारी जो वहां से सीख के आता है। तो मैं थोड़ा सा जो जो कहते हैं ना, जो सामने चीजें देखी हैं वो जो सीख के आते हो, वो चीज बहुत असर डालती है तुमसे, वो बहुत प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाती है। तुम नहीं करोगे इंटर्नशिप प्रॉपर तो बाद में तुम आके वही जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है वही तुमको एक कोई फाइल पकड़ा दी जाएगी, तुम वो फाइल को अच्छे से रटोगे, फिर वो जाओगे, अब कोई उस फाइल का आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, तुम फंस जाओगे, तुम एकदम ब्लैंक हो जाओगे। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल देख रखे हो तो एक सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना कि अच्छा हाँ मैंने देखा तो था यार, तार ये रेड कलर का यहाँ नीचे ग्राउंड में गया था, तुमसे ऐसे ही पूछेंगे कि अर्थिंग का वायर का कलर क्या होता है, तुम्हारा ये लाइव वायर ऊपर क्यों जाता है या नीचे क्यों जाता है, ये सॉकेट में ये वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो तुम्हें उसी चीज में फंसाने की कोशिश करते हैं। सर आ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। और देखो सवालों में अटकना बहुत नॉर्मल है, कई बार मुझसे पता है, मुझसे बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार मिस हो जाती थी, लेकिन वो इतनी मतलब वो ऐसी चीजें होती थी जो शायद मुझे आनी चाहिए थी, बट पढ़ते पढ़ते अक्सर कई चीजें हम नहीं कर पाते हैं, मिस हो जाती हैं, तो वो मुझसे मिस हो जाती थी। बट अभी क्या था कि अभी के टाइम मुझे ऑलमोस्ट सब आता था, कोई वैसा सवाल जहाँ पे बच्चों का बिल्कुल ध्यान ना जाए, जो भी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि तुम बता पाओ, तो तुम सिंपली या तो पोलाइटली सॉरी बोल दो या फिर उनको बस इतना बता दो कि सर पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा है, तो ऑनेस्ट रहो। 1-2 गलती तो वो शायद एक्सपेक्ट करते भी हैं, ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। भाई अपना बैकग्राउंड ऐसे बना के जाओ ना, तुमको क्वेश्चंस तुम सामने से दो, मैं पूरे हाथ में रहता है कि तुम इंटरव्यू कैसे चलाना चाहते हो, तुम उन्हें चीजें वैसे दो। जैसे मैं थर्ड ईयर में टाइम नहीं है, थर्ड ईयर तो अब इंटर्नशिप पे जा रहा, लेकिन सेकंड ईयर हो गया या फर्स्ट ईयर हो गया, जब सेकंड ईयर में आने वाला है, इनका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, तुम प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करो। तुम लोग को अगर पता होगा, मैं अगर कुछ देखा होगा तो मैंने भी एक बार सेकंड ईयर में एक कोई छोटा सा ई बाइक का किया था ट्राई, तो हमारे कॉलेज अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन तब तुम लेने को नहीं तैयार हो, कुछ हो ही नहीं, तो क्यों सामने से तुमने कहेगा कि आप प्रोजेक्ट बना लो, तुमको पैसे दे रहे हैं, नहीं करेगा। मेरे उस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए 50,000 रुपये में ग्रांट मिला था, लेकिन हमारी चीज़ प्रॉपर थी, उस चीज़ का मेरे को बहुत फायदा मिला। मेरे को ये फायदा मिला कि मेरे को क्वेश्चंस मिल गए, जब मैं कोई सीवी पढ़ता था तो उससे सामने दिखता, अगर ये ई बाइक या इस तरह की कोई चीज़ दिखती थी तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता था, और मेरे को उससे जो अपने इलेक्ट्रिकल से डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सोच के गया था, मैं तैयार करके गया था, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और तुम इस तरह की चीज़ें अपने फ्रेम करके अपनी बैकग्राउंड क्लियर करके जाओगे ना, तुम्हारे लिए इंटरव्यू बहुत ईजी होगा, तुम ना जैसे सोच जाओगे वैसे चला पाओगे इंटरव्यू। और तुम अगर कुछ किए नहीं हो, तुमने इंटर्नशिप भी ढंग से नहीं की, तुमने कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट नहीं किया, तुमने फाइनल ईयर में ऐसे कोई खास प्रोजेक्ट नहीं किया, तो तुम उनके पास जाओगे, उनके पास कुछ है ही नहीं तुम्हारे बैकग्राउंड को देख कर, तुम ब्लैंक हो, तो उनके लिए फिर वो अपने मन से कुछ भी पूछना शुरू कर देंगे। मैं नॉलेज टेस्ट करनी है उनको आखिर में। सर ये क्वेश्चन सर
हाँ पारस। सर वो इंटर्नशिप का सर मतलब फर्स्ट टाइम कब लेना चाहिए, वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स या उसके पहले ही सर? देखो भाई, एक तो हम लोग के जो करिकुलम में तुम्हारा आता है, करिकुलम में तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो हमें जो मिलती है थर्ड ईयर के लास्ट में, जो जून जुलाई का भी, जो थर्ड ईयर वाले हैं ये जून जुलाई के मंथ में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारे कॉलेज में बहुत नहीं अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब जीरो अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर तो एक दो अपॉर्चुनिटी थी भी, लेकिन कॉलेज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके वो कनेक्शन वगैरह से मिल जाती है, मतलब कहीं ना जैसे कहीं तुम्हारे शहर में या कहीं और। आईआईटी मंडी में तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही है, आईआईटी उसमें चल रही है, मतलब मिडिल ऑफ इंडिया, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो 2-3 जगह आईआईटीज में इंटर्नशिप चल रही है, रिसर्च इंटर्नशिप चल रही है, और इसमें स्टाइपेंड भी तुमको अच्छा खासे मिलते हैं। या कोई पावर प्लांट हो गया, बीएचईएल हो गया या टेरी पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे तुमको स्टाइपेंड्स देते हैं, लेकिन उन्हें वो कंपटीशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि भाई जब बंदे ज़्यादा तो कंपटीशन उन्हें रखना पड़ेगा, सबको करा नहीं सकते, तो वो चीज़ क्रैक करो, तो उसके लिए भी हमारे पास है, हमारा कॉलेज वो भी अलाउ करता है। हमारा एक थर्ड ईयर का एक सर हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव सर, वो अभी जा रहे हैं इंटर्नशिप पे, मतलब उनकी अभी एनओसी बन गई है, तो वैसा भी सीन है, वो जा रहे बाद में, लेकिन अभी एनओसी को चाहिए थी तो बन गई। तो करने वाले के लिए भाई सब रास्ते हैं, नहीं करने वाले के लिए, एक प्रोक्रास्टिनेट करने वाले के लिए कुछ नहीं है। लैंग्वेज का तो सर, लैंग्वेज का कोई दिक्कत तो नहीं रहता है इंटरव्यू में? लैंग्वेज का भाई रहता है, लैंग्वेज का सीन रहता है जब कॉन्फिडेंस नहीं होता। तुम हिंदी भी अगर प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हो ना, तो तुम फिर बंदे क्या हो फिर? ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब प्रॉपर हिंदी में बोल के भी इंटरव्यू निकाल लेते हैं, बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होता है, नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है, कुछ हाँ, कंपनी समझ बोल देंगे कंपनी, इंग्लिश, हिंदी बोलोगे तुरंत ही बोल देंगे भाई इंग्लिश चाहिए, तो वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम कंपनी में ऐसा होता है। भाई जो सर्विस साइड कंपनीज होती हैं जिनमें तुम्हारा पीपल डीलिंग और वो सब है, उसमें तुम्हारा रहेगा कि हाँ इंग्लिश कंपलसरी है तुम्हारी, क्योंकि तुमको डीलिंग करनी है। लेकिन प्लांट बेस्ड जॉब होगी तुम्हारी, जो मैनुअल तुम्हारी नॉलेज जहाँ टेस्ट होनी, जहाँ काम करना है, वहाँ तो तुम्हें अपने नीचे वालों को हैंडल करना ना मोस्टली, तो उनमें तो ऐसे कुछ लैंग्वेज बैरियर होगा नहीं। लेकिन वही चीज़ ना, कॉन्फिडेंस, तुम अगर 2+2 बोलने में भी 2 बार सोच रहे 4 होता है कि नहीं, तो दिक्कत है। थैंक यू सर। Any more questions? मतलब we are asking. Akshat, जी सर। I hope you have shared your story. यस कि सर। कैसे मतलब वो फेज को, how to overcome that phase when you are depressed and you saw that the person who is not having that much knowledge what you have and they are getting selected but you not. So how Yes, to sir. overcome that phase, that you must share, because that is the purpose of conducting this placement talk and all, that you should share, you all of you, Mehak and everyone, share the experience what you have got in your journey, right? honestly, Like हाँ, industrial training. I mean, I have just joined this and heard that Paras is asking about industrial training when we should go through this industrial training and all. आपको याद होगा कि वो कौन रमन था ना बच्चा, जो शोर मचा दिया था जब 25-30 लोगों की हमने लगवाई कि वो संजीव सर 25,000 रुपया ले रहे हैं। हाँ सर। याद है ना, जब मैं बोला था कि मेरी फीस है, और मेरी फीस क्या है कि जब लौट के आओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुमसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। यस सर। और जब वो मेरे पास आया था आई सेड कि जाओ जाके पूछो, जाके 25,000 रुपए मैं लेता हूँ। वो पूछने तो गया नहीं, और सब यही कर दिया। तो वो सारी बातें बेटा इन बच्चों को बताओ। रीजन इज दिस, जब टीचर कहता है ना तो इन्हें तो लगता है अरे यार इनकी तो आदत है, ये चिल्लाते रहते हैं। बट आप जब कहते हो, बिकॉज टुडे यू आर द हीरो, कि अरे यार महक मैम का प्लेसमेंट हो गया, अक्षय सर का प्लेसमेंट हो गया। टीचर का तो लगता है ये तो कहीं गया ही नहीं, कभी इसने कुछ करा ही नहीं जीवन में, तो ये टीचर बन गया। आप समझ रहे हो ना भाई? तो यू मस्ट शेयर ऑल दोस थिंग्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, राइट? उसको कितना पूछा जाता है, वो सब के लिए इन लोगों को मोटिवेट करो, इन लोगों को बताओ, ताकि हम लोग एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सके जो कि सेल्फ सस्टेन्ड हो, लाइक आईआईटी बॉडी का होता है। फैकल्टी नहीं चलाती आईआईटी को, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का स्टूडेंट चलाता है। फैकल्टी तो बैक एंड पे रहती है। हाँ यस सर। तो आई होप, मैं लीव कर रहा हूँ,
हाँ, अब वो चीजें सब इन लोगों को शेयर करो, और जो आगे आने वाली भी प्लेसमेंट टॉक हो उनमें आप सब इन लोगों को यहाँ के देखो अच्छी प्रैक्टिसेस बताना तो बहुत अच्छी बात है। हमारे HBTI में, HBTU में, हाउ टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज द Yes. मोटिव ऑफ कंडक्टिंग ऑल दिस इवेंट। कि यहाँ जो कुछ है कोसने से अच्छा है कि इस बंजर में कैसे हम लोग जो है बेस्ट चीज निकाले। आईटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन Yes, वो sir. हमेशा प्रॉब्लम विद सोल्यूशन होते हैं। आईटी का बंदा जो है नेवर विल कंप्लेन कि साहब ये जो है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो कहेगा साहब ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है, इसमें से जो अच्छा हो वो बताएं, कर लें, राइट। तो वो Yes, sir. एटीट्यूड हमारे बच्चों में डेवलप करने का यार जूनियर्स में अपने कोशिश करो, ठीक है भाई। जी सर। चलो मैं लीव कर रहा हूँ, वो तो आपका ये रखा था टॉक और मैं ही नहीं रह पाया शुरुआत में, क्योंकि सर को लेकर के आना था, और डीन साहब भी जो है आज तुम लोगों के दुआओं से जो है अपना एजेंसी से जो है लीव कर गए, मतलब डिस्चार्ज मिल गया, तो हम लोग घर ही जा रहे हैं। यू जस्ट कैरी ऑन, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, ठीक है। और इनको रियल जो है स्टोरीज वो इनको बताओ, तो वो इनसे ये सब जो है बहुत मोटिवेट होंगे, ऐसा मुझको लगता है। बेस्ट विशेस टू महक एंड अक्षर, बोथ ऑफ यू। खूब खुश रहो बच्चा लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। भाई सर ने ये पॉइंट तो अच्छा उठाया, डिप्रेशन वाला। ये बहुत गंदा अरे होता है हाँ, सर ये स्टोरी शेयर करिए। होता है। भाई। सीन ऐसा होता है कि जब एक्सपेक्टेशन भाई सबको होती है, कोई कुछ बोल ले, घर बोल ले, कहीं कुछ बोल ले, सब जज कर रहे होंगे तुम्हें। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे साथ वाले, सब जज करते हैं भाई कि बंदे की नौकरी लगी कि नहीं, बंदे ने कुछ ये कि इतना पढ़ता है या इतना पढ़ती है, अब तक क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर इतना पढ़ने भाई की तुम 2 साल कोई- बाद जाओगे ना, तुम्हारे अगर ये सीन हुआ कि तुमने 9 CGPA लेके बैठे हो लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, नहीं, ये तो नहीं, कोई नो problem आएंगे नहीं। नहीं इलेक्ट्रिकल में, नो तो आएंगे। तुम्हें कोई और कुछ नहीं लेगी। मैं फॉर इंस्टेंस बता रहा हाँ, हूँ, एग्जाम्पल है। तो मैं ऐसे बोलोगे कि यार ठीक किसी तरह आ गई होगी, वो बंदे ने उखाड़ा नहीं। और तुम्हारे अगर ये है कि भाई 6 CGP ला के बैठे हो और कोई तुमने अच्छी कंपनी फोड़ रखी है, तो होगा कि हाँ भाई ये तो मौज मस्ती और लौंडे होते नहीं है जैसे, हाँ, ये बहुत मस्ती है वही और समझ पढ़ भी सकते हैं। लेते हैं, वैसे लड़के हैं, क्रैक भी कर दी कंपनी, बहुत बढ़िया लड़का है, तो वो सीन होता है। और भाई ये सीन होता है, मैं तुमसे जैसे स्टार्टिंग बताया ना, मैंने 7 इंटरव्यू दिए, मेरे को 7 इंटरव्यू में ऐसा नहीं लगा कि मेरी गलती मेरे है पहले तो के है। 2 काफी, हाँ, मेरे पहले के 2 इंटरव्यूज काफी ठीक गए थे, बट तीसरे वाले में बहुत वाहियात सवाल पूछ रहे थे, फालतू का कि ये पंखा गोल कैसे चल रहा है, इसको ऐसे कैसे घुमाओगे, अगर ये एक है, अगर डीसी में एक करना है तो डायरेक्ट डीसी का कुछ सप्लाई लगा देते हैं दीवार में, पता नहीं बहुत फालतू का। कुछ लोगों का फालतू कुछ भी इंटरव्यूज का ऐसे एटीट्यूड क्वेश्चन भी होते होता है हैं कि वो जैसे- तुम्हें बस फंसाना चाहते हैं, वो शायद तुम्हारा प्लेसमेंट लेने आते ही नहीं है, वो बस टाइम पास करते हैं, और कुछ और लोग ऐसे होते हैं जेन्युइनली। इसमें और ये भाई भी चीज तो होता भाई है 100% होती है। जिस बंदे का जिस दिन होगा ना भाई, वो इंटरव्यू में हेलो सर भी बोल के आ जाएगा ना, उसका हो जाएगा। और जिसका नहीं हाँ, होगा पूरा और ये ज्ञान लक लेके फैक्टर आएगा। भी बहुत होता है, पता है कई बार हमको लगता है टेस्ट सबका एक जैसा जा रहा है, सब टाइम पे सबमिट कर रहे हैं, रैंडम शॉर्ट लिस्टिंग हो जा रही है और नाम नहीं हो रहा है कई बार, और मतलब ऐसा हो रहा है कि यार अभी कुछ एक नंबर इंस्टेंस, अभी कौन सी कंपनी थी ये, सचिन तिवारी जिसमें हुआ था, ग्रीनको का। एग्जैक्टली। ग्रीनको में मेरा 4 नाम- लड़के थे मेरे ग्रुप के, 4 लड़कों ने सेम क्वेश्चन पेपर, हम लोग बैठते ही साथ में एप्टीट्यूड देने, चारों ने सेम क्वेश्चन सेम आंसर सेम टाइम पे सबमिट किया, लेकिन 4 में से केवल एक लड़का हुआ जिसकी सबसे मीडियोकर थी, मतलब सबसे ज्यादा सीजी थी ना, सबसे और कम सीजी। उसमें फिर सीजीपीए का भी कोई रोल नहीं होता है, बस आपको कोई कुछ पता ही नहीं होता कि किस बेसिस पे हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, क्या ले रहे हो, कई बार कुछ नहीं समझ आता है यार, यही लाइफ है, इट्स जस्ट। लेकिन बस वही है ना कि लगे रहना है, मतलब और वही फिर- चीज है कि भाई क्योंकि मेरे हाँ लिखा होगा वही होगा। मेरा कोई इंस्टाग्राम फॉलो करता होगा तो उसको उसमें लिखा भी था मैंने भी लास्ट पोस्ट में कि भाई कि मतलब जीवन का जो कहते हैं ना कि लाइफ की ग्लोरी भाई हर समय जीतने में नहीं है, हार के जीत के उठने में। यार ये चीज मतलब वही पता है, हम दोनों भी काफी टाइम से ऐसे लगे हुए थे यार, मतलब यार ऐसा लग रहा था पढ़ो, फिर टेस्ट, इतने टेस्ट दे दिए कि मतलब हर टेस्ट में लगता था यार इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अब फिर नहीं होता था बहुत। मेरा एक कंपनी थी, मैं नाम भूल रहा, अरे वो ई व्हीकल वाली कौन सी थी जिसमें जीडीएम केवल तुम हुई थी, उसका जीडीएम बाकी सबको निकाल दिया था।
अच्छा हाँ, डेंसो उसी की तो बात कर रही थी मैं। उसमें हाँ। ऐसा था कि इसने बहुत अच्छा बोला था और भी लड़कों ने बोला था, और जापानीज आदमी आया था, वो इंटरव्यूज के पैनल में आया था, वो वो जापानीज सिर्फ था। बगल में बैठा हुआ था। पता उसमें नहीं मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मेरा इससे पूछना है, मेरा हाँ। इतना अच्छा जीडी गया था, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस था उसमें, ये था कि पेपर हो गया, चलो ठीक है, और पेपर से जीडी का राउंड आया, तो जीडी का उस दिन सीन था कि सीवी प्रिंट करा के लाने थे, तो मेरे को जीडी से पहले उसमें जाने का ऐसा खास मन नहीं था, बस कंपनी एक अच्छी लग रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड थी, मेरे को ऐसा था कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो जीडी मैंने कहा देखते हैं कैसे जाता है। तो जीडी जब दिया मैंने, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया, उसे बाहर लड़के निकल के बोले कि भाई तुम अपना वो निकाल लो, हमारा तो इंटरव्यू है। उसके बाद जब तक वहाँ यहाँ से गेस्ट हाउस से निकल के जब तक वहाँ पहुंचा नारायण की शॉप पे प्रिंट निकाले, तब तक आ गया रिजल्ट कि 20 लोगों में 20 का हम लोग का ग्रुप था, उनमें उसके लिए महक सेलेक्ट हुई थी। मेरा इतना गंदा दिमाग हो गया था, पहले के सब वो ब्रांच बेसिस भी था, वही तो, सिर्फ एक इंसान को मैं सोच रही थी यार पता नहीं क्या है कैसे, और फिर उसको कंपनी चली गई, उसने किसी को नहीं लिया, एक लड़की को लिया था, फिर उसको भी शायद ऑफर लेटर नहीं दिया और वो कंपनी ही चली गई। ऑफर लेटर नहीं दिया, और यही सीन है। और उस दिन फिर मैं वहीं से सीधे नारायण से सीधे गया संजीव सर के पास, मैंने कहा सर क्या हो रहा है, पहले आप बताओ कि सर सब कुछ अपना बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद सर ऐसा हो रहा है कि मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी अगर कमी होती, मैंने बोल ना पाया होता, मैं आंसर ना बता पाया होता, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता, चला जाता, लेकिन जब मैंने सब कुछ बेटर किया तब भी नहीं हुआ। मतलब मुझे तो इनफैक्ट मुझे लगता था कि ठीक है करती रहूंगी, लेकिन मुझे फिर किस्मत पे बहुत यकीन होने लगा कि ठीक है डेस्टिनी ही होती है, और जिस दिन होना होता है उस दिन होता है, वरना मतलब ऐसे ही होता है। आप कई बार कंपनी भाई ये देखती है, कंपनी को कई बार तुम कभी जाओगे तुम्हें ये पता चलेगा कि कई बार ऐसी कंपनीज आ रही है जो भाई अपर क्राइटेरिया लगा रही है, उन्हें 6.5 के ऊपर का नहीं चाहिए, उन्हें 7 के ऊपर का नहीं चाहिए, उनको नीचे का चाहिए, क्योंकि उन्हें कि ऊपर वाला आया बंदा हमारे पास से भाग जाएगा, वो माइंडसेट भी रहता है। तो भाई और मेन चीज वो लगे रहना, संजीव सर ने उस दिन यही समझाया था मेरे को, लगे रहने वाली चीज, तो उसके बाद और भाई एक सीक्रेट और बता रहा हूँ, तो कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, इनके बाहर नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू। कौन देखता है यूट्यूब पे कि मेन चीज है भाई, जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन संजीव सर से जरूर मिलके जाना। मैंने जितने लड़के देखे ना भाई, जितने मतलब इवन इनके दोस्तों, मैंने कहा था भाई 3-4 लड़कों को हो नहीं रहा, मैंने कहा आज तुम संजीव सर से मिलके जाओ, और जिस दिन मिलके गए उस दिन उनका हो गया इंटरव्यू। तो भाई ये मतलब गोल्डन सीक्रेट है, संजीव सर से मिलके जाना जिस दिन इंटरव्यू हो, भाई वो आशीर्वाद मिल जाता है, क्या हो जाता है, तुम भले उनके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, बस सर आज मेरा इंटरव्यू है, बस इतना था कहना है। पता नहीं यार भाई हो जाता है बस ये। देखो ये होता है ना कि कई बार तुम्हें जेलसी होगी, कई बार तुम सोचोगे यार ये तो इतना डिजर्विंग भी नहीं है फिर भी हो रहा है, तो somehow तुम बुरा सोचने लग जाओगे, बट बुरा मत सोचो, पता है दूसरों को ब्लेस करो, दूसरों के लिए प्रे करो। ये तो मैंने भी किया है कि यार अगर मैं नहीं हूँ इस इंटरव्यू का पार्ट या मेरा नाम नहीं है, किसी की प्लेसमेंट सबका भला हो, तुम किसी माँ बाप के बच्चे हो, किसी के बच्चे हैं, उनको भी जरूरत है। इनफैक्ट आफ्रो सर ने एक बार कहा था कि एक बार क्या हुआ था, ओपन इलेक्टिव नहीं, इलेक्टिव डिपार्टमेंट के इलेक्टिव ऐसे दिए जा रहे थे, तो मेरा सीजी दूसरे इलेक्टिव में सबसे टॉप पे था, मुझे दूसरा वाला चाहिए था, तो मैंने कह दिया कि सर ये मतलब आप उन बच्चों को देख रहे हो, वो वाईबी वगैरह क्लियर करके आए थे बच्चे, तो मैंने कहा सर उनको फिर मिल रहा है मुझे नहीं, तो ये बात पूरे उसमें फैल गई टीचर्स में। फिर आफ्रो सर ने कहा अच्छा महक, लेकिन फिर उन्होंने कुछ समझाया कि नहीं देखो कई बार हम डिजर्विंग होते हैं बट हमको नहीं मिलता, क्योंकि जिसको मिलता है उसको जरूरत ज्यादा होती है, तो ये भी सोचो यार किसी को ज्यादा जरूरत है, तुमको थोड़ी कम जरूरत है, तो उस हिसाब से भी लाइफ यार पूरा मतलब भगवान बैलेंस करा। ऐसा मेरा ही सीन सोच लो, मैं जो 7.5 की मेरा जैसे आदित्य बिरला में हुआ, सेंचुरी क्लब है, सेंचुरी उसका पार्ट है, तो इससे पहले मैं किसके लिए परेशान हो रहा था, एलएनटी के लिए हो रहा था, हेवल्स के लिए हो रहा था, और ये टेक्निक के लिए हो रहा था, जिनका 6.5 5.5 था। आखिरी में भाई भगवान ने ही रोक के रखा एक तरह, और आखिरी में हुआ 2 हो गए, इंटेली स्मार्ट भी हो गया। तो वही सीन है भाई, अपने आप पे भरोसा रखो और कभी हार मत मानो, अच्छे के लिए होता, रुकना नहीं कभी, और किसी से ये कभी ना करना कि भाई कि अरे यार उसकी कैसे हो गई। देखो रोने का मन करे तो तुम लोग आपस में ऐसे हक करके रो लो एक दूसरे को, किसी के पास जाके मन हल्का कर लो। मैम लड़के हैं, मैम लड़के
लड़के नहीं तो होते हैं। Ever, यार ये मैं तो कह रही हूँ, उसको मैंने बोला स्टीरियोटाइप नहीं रखना है कोई कि नहीं मैं ये हूँ तो मैं यही हूँ, मैं कुछ और नहीं हो सकता। डू व्हाटएवर यू फील लाइक, वी आर टेक्नोक्रेट्स। एग्जैक्टली। तो जब भी मन करे, किसी दिन पढ़ने का मन ना करे, मत पढ़ो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस हाँ। रिवीजन रखो और एंजॉय अपनी करो यार, ये चीजें लाइफ मतलब complete ये करते एंजॉय रहो। मतलब पिक्चर देखने नहीं चले जाओ, मतलब एंजॉय मतलब इस जर्नी को एंजॉय करो। हाँ मतलब एंजॉय है, सही है। तुम सब लोग का तो हो जाएगा यार, आखिरी तुम में सब जब लोग इतने घूम के स्मार्ट लग देखोगे रहे ना, हो। जब आखिरी दिन देखोगे उस दिन भाई हम्म, बहुत मजा आएगा। इस पूरे 4 साल का तो तुम लगे रहोगे, 4 साल कभी हार नहीं माने होगे, हाँ। पढ़ते रहोगे कुछ ना कुछ। सर मैं ये पूछ पता रहा है, हूँ। तुमको पता है मेरे को किसी ने, एक दोस्त ने कहा था कि देखो महक तुम्हारा तो इतना सीजीपी नहीं है, और यार यहाँ ऑलरेडी इतने सारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब इतने टॉप के बच्चे हैं, और तुम छोड़ दो, तुम अपना डेटा साइंस वगैरह जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, मतलब क्या ही रखा है, कंपनी भी नहीं है। बट मैं इतना आगे आ चुकी थी, इतना ज्यादा पढ़ चुकी थी कि आई डिडंट वांट टू गिव अप यार। और शायद वही था कि फिर जब होना था तब हुआ, तब मतलब नॉट गिविंग अप इज आल्सो अ वेरी बिग थिंग, यू नो। लोग एक्नॉलेज नहीं करते, लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट एक्नॉलेज इट, बट एग्जैक्टली। शुड नेवर गिव अप। एग्जैक्टली। हेलो हेलो। भाई बोलो। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब मतलब प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ? कोर में हाँ। ऐसा नहीं होता, मतलब कोर, हाँ नहीं नहीं, डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर सर मतलब भाई किसी मुझे का कौन बुला प्लेसमेंट के रहा टाइम है, पे, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मैं मतलब बता मैं बस दूंगा ऐसे भाई। पूछ एक्चुअली रहा हूँ हैवेल्स कि में बस जैसे ऐसा हुआ है कि अभी इंटर्न पे उनको बुलाया गया था, बट आई डोंट नो निशी और वो लड़का कौन है, वो गए कि नहीं गए। नवनीत गया है, नवनीत गया नवनीत है गया है, शायद। निश्चित गया है। तो एक दो हाँ, कंपनी क्वेश्चन रेयरली कंप्लीट करने कभी दो ऐसा उसको। करती है, ठीक मैम है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब ट्रेनिंग पीरियड हो तो कॉलेज में कितना मतलब फाइनल ईयर खत्म होने से कितने टाइम पहले परमिशन मिल जाती है कि आप कॉलेज छोड़ के ट्रेनिंग पे जा सकते हैं? परमिशन यार भाई एक एनओसी बनती है, ठीक है, वो एनओसी एनओसी तुम्हारे वो ऑफर लेटर पे डिपेंड करती है। अगर वो 6 महीने का होगा तो तुम्हारी 6 महीने की भी बन जाएगी, तुम्हें बस एग्जाम देने आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ लेकिन थर्ड ईयर में नहीं पास होती ना सर, ऐसा कुछ? तो अभी काम कर रहे हैं फैंटम थर्ड ईयर में नहीं होता। में, वो करते हैं इंटर्न वगैरह पे है। देख भाई, जो इंजीनियरिंग है ना इलेक्ट्रिकल, वो 3rd ईयर तक की है। तुम लोग जितना पढ़ चुके हो ना, इतनी ही है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। फाइनल ईयर पूरा स्पेशलाइजेशन पे, तुम जो सब्जेक्ट पढ़ोगे स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे, ओपन इलेक्टिव पढ़ोगे, स्पेशलाइजेशन पढ़ोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम स्पेशलाइजेशन अपने कॉलेज से ही करो। तुम चाहते हो कोई और कंपनी में जाकर स्पेशलाइजेशन करना, तो वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसका बस ये है कि एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस थ्रू उनको यहाँ पे भी रिपोर्ट देनी होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन देनी होगी। जैसे हम लोग के साथ के ही हैं, हम लोग का एक ग्रुप है साथ का, उसे ग्रांट मिला है लगभग कितना 50,000 का शायद मिला है ना, जिनवी सर वाले ग्रुप को। हाँ हाँ, तो वो कुछ क्रिएटिव कर रहा था। 10,000, क्रिएटिव करेगा तो 50 में नहीं, मतलब अभी इन हैंड आया है उसके 10-15,000, टोटल क्रेडिट 50,000 के लगभग होना है। तो वैसा भी सीन हो, लेकिन उसको यहाँ भी पैरेलल यहाँ पे भी चलाना है, चीजें यहाँ पे भी करनी है, यहाँ बल्कि अर्ली करनी है। वहाँ तो उन्होंने जुलाई तक का टाइम दिया, यहाँ पे तो मई तक खत्म होना है, तो वैसा भी सीन है। लेकिन प्रोजेक्ट भाई सीरियसली करना, प्रोजेक्ट भाई बहुत चीजें मैटर करती हैं। मतलब प्रोजेक्ट तुम 10 साल बाद भी एक्सपीरियंस हो कि किसी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, जो कंपनी स्विच करते हो ना, उसमें भी तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे ही होंगे। और वहां अगर तुमने गलती कर दी, ना इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितनी चीजें होंगी फॉर्मेलिटी होंगी। और भाई कोई तुम लोग का तो इस साल उस तरह बना है ना ग्रुप, सीजी वाइज? यस सर, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट फर्स्ट सीजी वाले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे फिर बहुत बीच में अच्छा गया। मौका है भाई सीखने का, कैसे टीम मैनेजमेंट करनी है। दोस्तों के साथ तो सब कुछ हो जाता है, औरों के साथ करके दिखाओ, औरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिखाओ, औरों से काम करवा के दिखाओ, खुद काम करके देखो और लोग के साथ। तो कंपनी तो जाओगे, तुम्हारे दोस्त थोड़ी ना होंगे। क्योंकि मेरे पास भाई यस सर, वी विल ट्राई काफी आवर लोग की बेस्ट। कंप्लेंट नहीं, कुछ लड़के मेरे को सुनने में ऐसे भी है तुम्हारे 3rd ईयर के, कि संजीव सर के पास दिए भी एप्लीकेशन, फिर जाके कंप्लेन भी कर दिया सीएन सर के पास कि संजीव सर गलत कर रहा है। हाँ नाम ना लो, पता है हमें। तो वैसे भी है,
तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे वो ना करो। सर गेट में किसी की रैंक है सर? गेट का आज रिजल्ट आया भाई, तुम्हारे जो अनंत सिंह सर हैं उनकी आई है Anand sir 67 67 AIR. सबसे ज्यादा प्लेसमेंट उन्हीं का होगा। हाँ हाँ इंस्पिरेशनल बंदा है भाई वो, इंस्पिरेशनल। बात उससे है। डिसिप्लिन सीखना हो बंदे से तो उससे सीखो। उसके मतलब ऐसा सीन है कि उसके 4 कमरे हैं मान लो अगल बगल, और चारों कमरे में बहुत तेज तेज डीजे भी चल रहा हो, लेकिन अगर उसे 3 घंटा वो पढ़ना है तो 3 घंटा वो पढ़ के रहेगा, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता वो चीज। और अभी से नहीं, उसके सेकंड ईयर से आदत है, तो थोड़ा सा वो गेट से रिस्पेक्टिव करना, उस गेट के रिस्पेक्टिव उस बंदे से सीखने वाला है। एक वो हो गया और एक तुम्हारा मयंक पांडे हो गया, ये 2 बंदे मतलब अच्छे, मतलब वो जो मैंने पहले बोला ना रगड़ने वाली चीज, वो बंदे बहुत रगड़ रखे हैं, बहुत बढ़िया है। सर और किसका मैं फाइनल ईयर जीतता है भाई, फाइनल ईयर में हर बंदा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर क्या आनंद सर को छोड़कर किसी का हुआ है गेट में? यार फिलहाल तो ऐसे रैंक पता नहीं चली, एक शायद हमारे रंजीत गुप्ता सर थे, राजन उपाध्याय। नहीं वो प्रैंक चल रहा है। रंजीत सर का कितना सर रैंक? वो शायद 2500 के अप्रॉक्स है जहाँ तक मेरे को याद है, अभी तो उसने बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। उनकी सर हो जाता होगी फिर उस हिसाब से। हैं बीच में हैं लड़के भाई, यहाँ पे कंपटीशन वाले भी लड़के हैं, तुम्हें वही चीज़ है ना, तो अपना पाथ क्लियर करो, अपना तुम्हें किस हिसाब से जाना है, क्या करना है, प्रोजेक्ट उस हिसाब से चूज करो कि ज़्यादा परेशान करने वाला ना हो, कि अगर तुम्हें कंपटीशन करना हो या कुछ अलग पाथ पे कैट पे जाना हो, तुम्हें जैसे हर्ष पांडे सर मैं कैट इन्होंने थोड़ा इस साल वो ऐसे हो गया, तो उस पाथ पे जाना हो तो ऐसा प्रोजेक्ट ना लो जितना तुम ज़्यादा परेशान हो, लेकिन सीखने वाला लो, मतलब बहुत जैसा रद्दी मत ले लेना, रद्दी ले लोगे तो वो मैटर ही नहीं करेगा, तुम्हारा फाइनल ईयर बर्बाद हो जाएगा एक तरह से समझ लो। कुछ इंटरेस्टिंग लेना, कुछ नया लेना, और कंपटीशन तैयारी करनी है तो बहुत झंझट वाला नहीं लेना, अगर कंपटीशन तैयारी नहीं करनी है तो जरूर झंझट वाला लेना, झंझट वाले में सीखने को बहुत मिलता है लिटरली। हार्डवेयर करने को मैं कहूँगा कि हार्डवेयर करने की सोचना, हार्डवेयर प्रोजेक्ट में भाई जितना सीखने को मिलता है ना, तुम बहुत बेसिक, जैसा मैं हार्डवेयर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मेरा भी काइंड ऑफ हार्डवेयर ही है। जाता है -12 वोल्ट की सप्लाई बनाने में कितना चैलेंज आता है, तुम लोग देखते होगे कि वहां से हमने सप्लाई निकाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब से लगा दी मशीन में, तो तुम्हें खुद 12 वोल्ट की सप्लाई बनानी होगी और उसे कांस्टेंट रखना होगा, तो उसका चैलेंज अलग होगा। और यही मैं इनसे कह रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड ईयर से, कि तुम लोग कुछ करने की सोचो, प्रोजेक्ट करने की या कुछ भी करने की सोचो, तुम्हें बहुत सीखने मिलेगा। मैंने वो कावासाकी बाइक थी, तुम लोग अगर उनको जानते हो, AK राठौर सर की, तो AK राठौर सर की बाइक थी कावासाकी, उन्होंने हमें दे दी थी, तुम जो करना चाहो उसके साथ करो। हमने पूरा इंजन खोल के सब कुछ खोल के रख दिया, तो उसमें बहुत चीज़ें सीखने मिली। हमने मोटर जो चेन सॉकेट लगाई थी, DC मोटर चलाई थी हम लोग, जो यहाँ पे जैसे ई-रिक्शा में जो चलती है वो तुम्हारी DC मोटर लगी होती है, चेन सॉकेट से वो तुम्हारे पहिए में फिट होती है, जो इसमें ई-व्हीकल आती है, तो पहिए में ही मोटर लगी होती है, तो जितना उसका गियर रेशियो होता है उतने लग जाएगा, एक बार मोटर घूमेगी तो एक बार पहिया घूमेगा। बाकी हम लोग ने उससे नहीं किया था, हम लोग के तो मतलब साइकिल जैसे बनती है तो साइकिल में ही मोटर लगा दिया। अब तुम नॉर्मल मोटर खरीदो तो उसमें गियर थोड़ी ना होता है, गियर हमने लगाया, उसमें भाई मैग्नेट चिपक गया, तुम लोग तो पड़े हो गए, तो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट चिपक गए, अब भाई उसको खोल के हम लोग ने तो बहुत लर्निंग हुई भाई, बहुत मजा आया, अच्छे रिलेशन बने। मयंक खन्ना सर थे, अभी कुशवाहा सर से आज तक बात होती है, उनको आज भी कॉल कर लो भाई, 1 घंटा बात होती है, बहुत अच्छी नेटवर्किंग हुई। तो करो भाई, मत होने दो अपना 4 साल। हाँ अनुराग कह रहे सर मैं भी तो था वॉलंटियर इसमें। हाँ तुम तो थे ही, उसमें बैठते थे ना आके कॉल पे। तो बढ़िया था यार। और तो कोई है कोई? सर एक जनरल क्वेश्चन है सर। सर जैसे कॉलेज में जब जाते हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, वहाँ जमील सर का या संजीव सर का जितनी भी क्लासेस करते हैं सब समझ में आ जाता है, बट जब हॉस्टल आते हैं ना तो हॉस्टल में डिसिप्लिन रह नहीं पाते और मतलब अच्छा हो नहीं पाता। यही कारण है कि अगर पीछे है थोड़ा बहुत तो इसी कारण मतलब हॉस्टल में अच्छा नहीं हो पाता है। भाई हॉस्टल एक चीज, मेन चीज जो है डिसिप्लिन है, बंदे को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बंदा अगर डिसिप्लिन है ना
अपने आप से, मतलब एक ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, बस ये दो क्वालिटी तुम्हारे अंदर हैं, तुम कुछ भी फोड़ सकते हो। वहाँ जैसे कॉलेज जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, कुछ नहीं चक्कर है, तुम पढ़ के आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको अगर तुमने सोच रखा है कि मैं अपने आप को 2 घंटा टाइम दूंगा या 1 घंटा, 1 घंटा ही तुम अगर दोस्त तुम सोच लो कि 1 घंटा मेरे को पढ़ना है बस, चाहे दुनिया की इधर की उधर हो जाए, मेरे को रात के 12 बजे ही पढ़ना पड़े 1 घंटा, तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा जरूर। अगर वो तुम अंदर अपने लिए है ना, तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी और रेगुलर करने से आसान होंगी। एक वो तुमने सुना माम्बा मेंटेलिटी, मामा मेंटालिटी भाई यही है कि रोज एक नई चीज सीखनी है, मेरे को कुछ नया प्रोग्रेस करना है। तुम्हें बस अपना ये चेक रखना है कि मैं क्या आज सीख रहा हूँ नया। इवन इन सब्जेक्ट कुछ तुमने सीखी, तुम वॉलीबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल तुमने आज नया शॉट सीखा, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमने आज गूगली फेंकनी सीखी, आज तुमने 10 लड़कों से मिले, तुमने उनको अपना यार बना लिया, तो वो चीज़ है। तो उस मेंटालिटी से चलो और डिस्ट्रैक्शन भाई, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे कॉलेज में जितनी अच्छी चीजें हैं उससे इंटू 10 गलत चीजें भी हैं, वो सबको पता है, हाँ। सबको। और उन लड़के चीज तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग में भी जल्दी पड़ जाते हैं, तो ये सबसे दूर रहो। बहुत गंदा। मैंने अच्छे अच्छे लड़के अपने बैच के बता रहा हूँ, बैच इन हाँ द सेंस 24 बैच पूरा, केमिकल मैकेनिकल सब कुछ, अच्छे अच्छे लड़के खराब होते हुए देखे, खत्म होते हुए देखे, जो बहुत फर्स्ट ईयर बहुत। सेकंड ईयर के top और आते हैं। लड़कों में तो गलत संगत ज्यादा होती है इनफैक्ट, तो मतलब अपना बैक ऑफ द हेड मेन गोल याद रखना कि मेरे को भाई आया क्यों मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अपने आप को साबित करने आया या कुछ भी। तो उस चीज को दिमाग में रख के करोगे ना, तो इन सब की नहीं जाओगे। और एक तो वो होता है ना कि नो कहना सीखो, भाई बहुत काम आता है यहाँ पर कॉलेज में। अगर तुम नो कहना नहीं सीख पाए दोस्तों के बीच खासकर, खत्म हो जाओगे। यहाँ लड़के भाई चाहेंगे नहीं तुम पढ़ो, तुम जब पढ़ रहे हो तभी आएंगे, तभी करेंगे, करे भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। चलो जी सर। हो गया। हाँ ठीक है। मेन तो भाई खत्म हो रहा है हम लोग पास, हार्डली कितने 2 महीने बचे होंगे। मैं हाँ क्या मार्च अप्रैल मार्च मई, को क्या ही मानो, मई में तो मिलेंगे नहीं, चले जाएंगे अप्रैल और मई अप्रैल में मिल लो। हाँ तो भाई अभी मिलना हो मिल लो, ना फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए तो हम लोग चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना हमें, और ना हम तुम्हें जानेंगे और जाके बाहर, ना तुम हमें जानोगे, इतना नहीं तरह रात में बर्गर मंगा पाओगे। सर सर मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो हाँ सर, मैं कह रहा हूँ हाँ कि मतलब आपका जैसा मैं पूरा सेशन मैंने सुना, इसमें मुझे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में आप क्रिकेट में ज्यादा एक्टिव रहे। क्रिकेट यार इंटरेस्ट है मेरा यार, मतलब बचपन से मैं तो मतलब। मैं जी सर, तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैच कराया जाए इलेक्ट्रिकल में। लास्ट ईयर मैं जब IEEE का चेयर था तो मैंने भाई यही कहा था, एक वो होता है ना IEEE में सोशल इवेंट या ऐसे कोई इवेंट होता है, तो मैंने यस कहा सर, था पर हम कर सकते हैं। हाँ AEE में तो कर ही सकते हो, कराओ मैच। यस सर, मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर पूरा इन्वॉल्व करा के कराते हैं। हम तो लीग करा लो, हम तो कह रहे हैं। हाँ वही 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 सेम सर, हाँ टूर्नामेंट। वो क्लस्टर होता है यार, क्लस्टर हो नहीं पाएगा इस साल। इस साल बहुत चीजें हैं, तुम्हारा अध्याय सुनने वाला है, बहुत बीच में अटका हुआ है। अध्याय कब हो रहा अरे है? कोई बात नहीं सर, सर वो 10 अप्रैल से है। रेजोनेंस Something is cooking. Something's cooking. यस सर 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 कुछ कुछ तो बन रहा है सर। बंद लेने दो। Yes. Sir. So, हम्म, भाई एक बार कैमरा तो खोल दो, शक्ल तो देख ले सबकी। सिर्फ लड़के हैं क्या यहाँ पे? देखिए बुलाए लोग। हाँ मैम गर्ल्स भी हैं, बट किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अच्छा। भाई लेकिन ये प्रॉब्लम रही है यार, लड़कियां बहुत जो है कम पार्टिसिपेट करती हैं चीजों में, मैंने ये देखा है भाई इलेक्ट्रिकल की। ओए मैं महक को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, महक और एक दो लड़की तूबा हो गई, और इन दोनों 2-3 लड़कियों को छोड़ के भाई, मतलब इवन TPR बनना तो हमारे पास एक ही कैंडिडेट ही था, ऐसा सीन हो गया था। तो ऐसा तुम लोग ना करना भाई,
लड़कियां जितनी भी हैं सब कुछ भाई आखिरी में पे करता है, कुछ भी फालतू चीज नहीं है। हर्ष मैं कह रहा हूँ सब लोग का कैमरा खुलवा के एक स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। काफी कुछ किया बट ऑल्सो में वो थी इन्वॉल्व, और कोडिंग में तो खैर लग के काम करना पड़ता है, फिर आप कोड को थोड़ा सैक्रिफाइस ही कर लेते हो ही जाता है यार। डीएसए अपने आप में बहुत वास्ट है ना। और अगर हाँ किसी को डीएसए वगैरह कोडिंग पर, तो तूबा मैम है, उनकी अभी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई है सीमेंस में, तो आप प्लीज मतलब उनसे पूछ सकते हो, बहुत अच्छे से आपको बता देंगी। भाई यही टाइम है हमारे पास, 1-1.5 महीना अपने फाइनल ईयर को भाई अच्छे से एक्सप्लोर करो भाई, बात बहुत अच्छा करो, फाइनल पूछ लो जो भी है। इतना पका पकाया है ना, है। मैं हर बंदे में कुछ सीखने को मिलेगा। Yes. मेरे जितने भी थे, मेरा जो फाइनल ईयर था, मतलब मैं 3rd ईयर में था, तो जो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर मतलब- था तुम्हारा? अच्छा ओके ओके। और मेरा जो सीनियर बैच था, मतलब लाइक 30-40 स्टूडेंट्स है, तो 30-40 स्टूडेंट्स में से 90% मेरे को जान रहे होते थे, और मतलब अच्छी खासी बातचीत थी। अभी तुम्हारे मैं 3rd ईयर में ही मतलब 100% बच्चों को नहीं जानता, 100% क्या, मैं 50%। अरे तो तुम लोग थोड़े से वैसे भी तो बच्चे आ गए हैं अब, वो जाने देने वाले, लेट इट गो वाले। अभी मैंने प्लेसमेंट सेशन के लिए मैंने बुलाया था, तुम योगुल आया था और अनुराग शायद कॉल आई थी, 2-3 बच्चों के पास कॉल आई थी मेरे पास कि सर आ रहे हैं, आ रहे हैं। 3rd ईयर में दिखता नहीं। अभी मैंने लास्ट अभी कल ही या परसों मैंने एक प्लेसमेंट के लिए भेजा था, कि प्लेसमेंट के लिए कुछ वो था ना ट्रेनिंग सेशन, उसमें 3rd ईयर कितना गया था, मेरे को तो नहीं लगता एक बच्चा गया होगा। तो वही बस वही डिफरेंस आ रहा है, और यही चीज डिग्रेड करोगे तो बस खराब होता जाएगा, यही चीजें खराब करती जाती है। तो मुझे लगता है कि कुछ ये सब चीजें करके तुम्हारा नुकसान होगा, तो ठीक है करो तुम लोग, बढ़िया है, ठीक है, तुम लोग भी नया इतिहास रचोगे, रची रहे हो। चलो हो गया खत्म। सर एक बार Yes. थैंक यू गाइस फॉर हैविंग अस। आज कुछ बोल रहा है? थैंक यू मैम। नहीं सर, मैं यही स्टार्ट कर रहा था, मतलब क्लोज कर रहा था। अच्छा अच्छा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं यार। स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छा सा हम हाँ सबका। वही मैम वही बोलने तो वाला वैसे था। चेहरे दिखा दो अपने, सब एक बार और कैमरा भेज ऑन देना कर। मुझको, कोई ना कोई प्लीज मुझे भेज देना, क्योंकि मेरे पास, मैं इन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं हूँ शायद, तो भेज देना प्लीज। गाइस कैमरा अगर ऑन कर सकते तो कर लो प्लीज। अरे वाह, यार मैं यार लाइट बंद करके देखता है, और काला हो गया। चलो Cheers to Mev and Sir's placement. थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू।